دین کا مسئلہ میں نے پہلے اس پہ لکھ بھی دیا، اب اور کیا بات پوچھی جائے گی؟ لکھ دیا آپ نے کہ دین کا مسئلہ ہے، اس کو ماننے والا، اس عقیدے کو رکھنے والا مسلمان ہے یا نہیں؟ بھائی اب بھی یہ پوچھنے والی بات؟ ارے تو بتانے میں کیا ہے مسلمان ہے یار، ارے بتائیے، میں نے کہہ دیا جو نہیں مانے وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں، اور کیسے بتایا جائے؟ مانے گا تو مسلمان ہے، 100% مسلمان ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ بات آپ بھی مسلمان ہیں اور ہم بھی الحمدللہ شفاعت کا بات اس میں ٹاپک دوسرا ہے، ابھی نکل کا جائے جملے میں کیا ہو گیا لوگ، ابھی بات ہوگی، سب ہوگی، لوگ لکھو یہ بات آپ لکھیے، شیخ بابو خان صاحب دیکھو کیا ہو گیا اس میں؟ ارے بھائی کیا فائدہ؟ ابھی آپ کے سامنے کہا، ابھی آگے کوئی بات نہیں لکھوائی جائے گی، ہونا ہے، بات صحیح ہے تمہاری۔ بات کریں گے پبلک کے فون آج پھنسے ہیں مولانا صاحب، سیکھ لو ان سے کچھ دین سیکھ لو، سکھائیں گے نہیں سکھائیں گے؟ بھائی دین سکھانے کے لیے آئے تو دین سکھائیں، آدمی کو پھنسانے کی کیا ضرورت ہے یار؟ شفاعت کا ادراک ان سے کہہ رہا ہوں تو منع کر رہے ہیں تو کیا کرو؟ کہاں ہو رہا ہے؟ سکھائی جا رہی ہے۔ ارے جتنی بات ہو گئی، آگے بڑھی نہیں بڑی بات بتاؤ، اتنے آگے بڑھ گئی، اب گفتگو شروع ہونا ہے، بس ایک جملہ لکھو، آپ کیا ہو گیا اس میں؟ کیا لکھو؟ اس لیے لکھوایا جا رہا ہے تاکہ آپ اپنی بات سے پھر نہ جائے۔ تو جب ویڈیو لکھ دو، یہ بات کیا ہے؟ یہ لکھ ارے لکھ دو، یہ پیج پھاڑ کے بعد میں اپنے پاس رکھ لوں گا۔ ارے یار تو کیا ضرورت ہے؟ لکھ دو عیب کی بات ہے اس میں، کوئی دقت نہیں، زبان سے لیکن کیا ضرورت ہے؟ پہلے دین سکھانے کے لیے آئے، ذرا ایک آپ بھانجے ان کے سنیے، ایک منٹ، 10 کیمرے چل رہے ہیں یہاں آپ پر، بھانجے ہو؟ ارے کیا نام ہے آپ کا؟ زبیر۔ آپ بھانجے ان کے؟ ابھی زبیر صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں لکھ دو، آپ کے بھانجے ہو گئے، ماموں سے کہہ رہے ہیں، آپ بات نہیں مانیں گے تو اس میں کیا ہو گیا؟ تو چاہے بھی تو مسئلہ بڑھاؤ یار۔ ارے سنو، جو چیز میں آپ سے صرف اتنا پوچھ رہا ہوں کہ جو چیز جو زبان سے بول دیا ویڈیو ریکارڈ ہو گیا تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز جو لکھ گئی ہے، اس سے میں نہ پھراؤں نہ یہ پھرے ہیں۔ حضرت ویڈیو لائیو ہے، ویڈیو لائیو چل رہی ہے، یہ تھوڑی کہیں چلی جائے گی۔ بالکل بالکل، آپ اس میں کوئی ایڈیٹنگ تھوڑی نہیں ہو جائے گی، بالکل آپ لکھیے، اس میں کیا ہو گیا؟ نیٹ پر بار بار وہی چیز جتنے بھی مناظر نیٹ پہ ہیں حضرت، ساری چیزیں تو بول دو نا کیا معاملہ ہے، زبان سے کھول کر بھائی یہ بنیادی چیزیں جو ہوتی ہیں نا، دعویٰ الجھانا ہے، ہمیں کوئی دقت نہیں ہے، کیوں کیا پتا کیا ہے؟ یہی تو ظاہر کرنا ہے، کیا پتا کیا ہے؟ ہم بھی سننا چاہ رہے ہیں کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، بالکل ہم بھی یہی سننا چاہ رہے ہیں۔ یہی چاہ رہے ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ باتیں یہاں دین سکھانے کی باتیں ہوئی، دین سکھانے کی باتیں ہوئی، کہاں سکھایا جا رہا ہے؟ یہ کچھ نہیں ہے، ایسے لکھا چلو خاموش رہو۔ جب سامنے 10 کیمرہ چلنے سے بات خاموش ہو جائیں۔ یار یہ تم کو دین نہیں سکھایا جائے گا، ارے تو کوئی دقت نہیں آ رہی تو کیوں دین کی باتیں کریں گے؟ یہ سب کیا انہوں نے مجھے اجازت دے دی لکھنے کے لیے، اب لاسٹ میں اس کو سائن کر دیں۔ ہاں ٹھیک ہے، اب خاموش ہو جائے، خاموش ہو جائے، بات ہو گئی، بس ہو گئی۔ چپ جاؤ، چپ جاؤ۔ کتنا سیکھ گئے اتنی دیر میں دین؟ ٹھیک ہے کچھ دین تو بہت سیکھے ہوئے، ویسے ہی نماز پڑھتے ہیں اور کیا؟ اتنا سیکھے ہوئے ہیں انشاءاللہ گمراہ نہ ہوں گے۔ ارے غلط لفظ کہنا تو دین سکھائیں، یہ آئے ہیں اتنی دیر سے سکھا رہے ہیں، دین سکھائیں نا، دین کی باتیں کریں نا۔ سوچ کے ہی ہے۔ ارے تعجب میں آپ نے ابھی تک کچھ قرآن حدیث کچھ سیکھا، یہاں پہ اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ سکھائیں گے یہ نہیں سکھائیں گے، یہی آدمی کو الجھاتے رہیں گے کہ یہ لکھو یہ لکھو یہ لکھو۔ یہ شفاعت مصطفیٰ قرآن و حدیث نہیں ہے؟ شفاعت مصطفیٰ کا انکار کون کر رہا ہے؟ کوئی کرتا ہے کوئی؟ پھر یہ کیا ہے؟ ارے خاموش رہو حضرت۔ یہ انہوں نے مجھ سے لکھنے کے لیے کہا تھا اور بعد میں یہ سائن کرنے کے لیے انہوں نے بھی کہا تھا، ٹھیک ہے، میں نے یہ لکھ دیا ان کے مطابق۔ انہوں نے جیسے پہلے لکھا تھا نبی کی شفاعت سے اتفاق ہے، انہوں نے یہ لکھا تھا،
हमने ये कहा हमारा दावा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के हुक्म से अपनी उम्मत की शफाअत फरमाएंगे। इन्होंने कहा दोनों बातें एक हैं। उसके मुताबिक इन्होंने मुझे इख्तियार दिया कि मैं लिखूं, साइन ये करेंगे। मैंने ये लिखा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत पर ईमान लाने वाला मुसलमान है, उसको काफिर कहने वाला खुद काफिर है। अब आप साइन कर दो, शफात साइन कर दो। अब ये पता है क्यों साइन करवाया जा रहा अरे भाई, है? मैं बताऊं? अब पहले देखें, अब कहीं किसी ने कोई वीडियो में कही होगी कोई बात, किसी ने कहीं लिख मारी होगी किसी संतरे ने, तो कहेंगे वो फलाने मौलाना ने तो ये लिखा है, अब उसको तुम काफिर कहो। फलाने मौलाना ने तो हमको काफिर कहा है, कहना पड़ेगा भाई। उसको काफिर कहो। तो भाई उसूल के मुताबिक भाई जो उसूल के मुताबिक है, अगर बुखारी शरीफ अगर जो हदीस पाक है बुखारी शरीफ की, मन काल ली अखीही या काफिर फकद बाअ अहदुहुमा, जिसने किसी मुसलमान भाई को काफिर कहा तो अगर काफिर कहा और कुफ्र है उसमें तो सही कह दिया, और अगर काफिर नहीं है तो वो कुफ्र पलट के उसी के गले का हार बन जाएगा, तोक बन जाएगा। तो इसके मुताबिक अगर शफाअत रसूल मानने वाला मुसलमान नहीं है फिर उसको काफिर कहने वाला खुद काफिर हो जाएगा। आपके मुताबिक ये अगर सही है बात और है भी सही, आपने कहा इस पर साइन कर दीजिए बस। आप दोनों मुत्तफिक हो रहे हैं, बिल्कुल बात सही है। समझ रहे हैं बात? हाँ बिल्कुल सब समझ रहे हैं, आप ही नहीं समझ रहे। लिया करें। अभी बताइए, हजरत ने बात बताई, अब आप करिए, साइन करिए। हजरत ने बात पहले बताई। अरे गुफ्तगू सुन लो, गुफ्तगू सुन लो। पहले तो इन्होंने बताया कि जो शफाअत का इकरार करे, शफाअत का इकरार करे वो मुसलमान है, और जो उसको काफिर कहे तो वो खुद काफिर हो जाएगा अगर वो काफिर नहीं है। अब मैं पूछता हूँ, काफिर का माना होता है कुफ्र करना यानी इनकार करना। किसी भी एक मिसाल के तौर पर एक शख्स जो है वो सूद ब्याज का कारोबार कर रहा है, काय का कारोबार कर रहा है, हाँ वो अल्लाह से जंग का ऐलान कर रहा है, वो कुफ्र में है क्योंकि वो आदमी शफाअत का इकरार करता है। लेकिन अल्लाह वहदहू ला शरीक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, हक़्क़ तुक़ातिही, जैसा कि उससे डरने का हक है, और कहा वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, देखो तुम मरो तो मुसलमान ही मरना। बेशक। किसके लिए कहा था? ये बात किससे शुरू करी थी? अल्लाह ने मुसलमान से शुरू करी थी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, जब तुम मरो तो मुसलमान ही मरना। अल्लाह कह रहा है, तो अल्लाह खुद ये बता रहा है कि अगर जिसने किसी ने किसी चीज का इनकार कर दिया और वो काम कर रहा है, हालांकि वो शफाअत का इकरार कर रहा है, लेकिन एक चीज वो कहता है कि भाई नमाज मैं नहीं पढ़ूंगा। आदमी दायरे इस्लाम से खारिज हो गए, मुसलमान है वो, फिर भी मुसलमान है। बताओ बताओ मुसलमानों, अगर वो कहे मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा भाई, मैं हूं तो मुसलमान, तो वो काफिर हो गया नहीं हो गया? हालांकि शफाअत का इकरार कर रहा था, शफाअत का इकरार कर रहा था, लेकिन उसने एक चीज का इनकार कर दिया, कहा मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा भाई। ठीक, अब वो कुफ्र में पड़ गया नहीं पड़ गया? अब ऐसे आदमी को आप काफिर कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं? क्योंकि वो कुफ्र में है इस वक्त, और उससे समझा सकते हैं कि भैया आप जो है कुफ्र में जा रहे हैं, आप जो है हक से पलट रहे हैं, जो सही बात है उसको तुम झुटला रहे हो, तो ऐसा आदमी काफिर हो जाता है। समझ रहे हैं? ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं बल्कि अल्लाह का भी फरमान है। ठीक, लीजिए मैंने इस पे साइन कर दी। साइन में नाम भी लिख दो थोड़ा, हमने अपना नाम लिखा उर्दू में पूरा, वो रहना चाहिए ना साइन के साथ। बाद में किसी को क्या पता किसने साइन करे, तहरीर जाएगी। बाबू खान रिजवी, ठीक है ना? हिंदी में भी लिख दिया और उर्दू में भी लिखे दे रहा हूँ। तारीख भी डाल दो। हाँ नहीं, ये सब उसूली चीजें हैं भाई ताहिर भाई, हम जानते हैं ना इन चीजों को, कब बात हुई, कौन सी तारीख में हुई, सब चीजें जरूरी होती है, सबूत होता है। बाबू खान रिजवी, ठीक। चलिए, ये मैंने तीनों जबानों में साइन भी कर दिए और लिख दिया। अब और आगे लिखे, चलिए ठीक। ये बिल्कुल सही चल रही है, बात नहीं चल रही है, सही बात है। सही चल रही है। बहुत ही आपको कुछ अल्लाह के बंदो, इनसे कहो कुछ दीन सिखा दें। अरे ये भाई एक आदमी से बात हो रही है, सिखाया जा रहा है, एक आदमी से खाली बुझाया जा रहा है। अब सुनो, आगे सुनो बाकी। अरे भाई अब ये बताइए, इन्होंने जैसा कि हाँ, इन्होंने ना मजाक वाली बात है। अब सुनो एक मिनट, हाँ मैं खामोश रहो। एक सवाल है तो क्या दिक्कत आ रही है? हाँ तो पूछ रहे खटका तो इसी का ही है इस दिन में। पीछे से आवाज आ रही है 3:40 में 10 में। वो सब होगा अभी, पहले ये मुकम्मल हो जाए। बताते जाओ, भूल अभी जाएंगे। रुको एक मिनट, अब देखो, अब ये बताइए, सब लोग खामोश हो जाओ भाई। अरे पहले वो बात हो जाने दो पूरी।
आप लोग बोलो मत, देखो तवज्जो से बेटा, ये खामोश हो जाओ। अभी इन्होंने शुरू गुफ्तगू में बताया था कि मैं, मेरे बारे में कहा कि मैं इनको नहीं जानता हूँ, मैं सऊदी काम करने गया, इनको ये लगता है, लेकिन मैं काम ही नहीं करने गया, बल्कि क्या क्या कहा कि करा इन्होंने, वहाँ तबलीग का कोर्स किया, दावे का कोर्स किया, और क्या क्या था हजरत थोड़ा बता दें, वो सारी चीजें इन्होंने बता दी। वो टॉपिक ही नहीं है। सुनो सुनो, आप अपना इसका काम मतलब करें, ये है, आप अपना काम करें, इसका मतलब ये है, इनको समझाने के लिए आए थे, वो तो बात ही खत्म हो गई, वो बात जहाँ सही चल रही है, टॉपिक था, वो भाई, टॉपिक बिल्कुल उड़ गया, नतीजा निकल अब वो रहा है। बात ही नहीं है। अब सुनो, अब तो ये यहाँ पे खाली उलझाने वाली बातें चल रही है। अभी बताइए, एक सवाल पर पहुंचे ना है। ये वहाँ सऊदी अरब में रह के आए, अब सऊदी अरब, सब लोग मुतवज्जो हो जाओ, अरे इसमें सऊदी क्या अरब से की ये बात है? किताब छपी है, किताब का नाम है रहनुमाए हज उमरा, वही है जो इनके बाप लेकर आए थे सबसे पहले। अब सुनो, और इस किताब को इनसे ज्यादा मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि ये मेरे कैमरे हाथ में करीब है। ले आओ जरा, कैमरे भाई साहब इधर ले आओ, दिख रहा है इधर ले आओ। ये देखें कहाँ से ये चली है, सब घुमा के यही अब लाया सुनो, जाएगा सुनो, तुमको, और इनके ये है पास ही देखो, नहीं कुछ, ना ये- तुमको कुरान सिखाएंगे, ना तुमको अब सुनो, दीन सिखाएंगे, ये किताबें सिखाएंगे। इन्होंने शुरू में अभी लिख के भी दे दिया, इनके साइन मौजूद है, 3 जबानों में कह रहे हैं साइन किए हैं, और साइन ये किए इन्होंने कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत पर ईमान लाने वाला मुसलमान है, इसको काफिर कहने वाला खुद काफिर है। सही है। अब आइए इधर, ये किताब छपी है सऊदी अरब से, रहनुमाए हज उमरा व ज़ियारत मस्जिद नबवी। अब लिखने वाले कौन है? मुतअद्दिद उलमा इकराम, यानी पूरी एक टीम ने ये किताब लिखी है, इनके उलमा जो वहां पर हैं उनकी मेरे टीम नहीं है, हाँ, सुनो, होंगे। अरे सुनो सुनो, हमारे तो अल्लाह रसूल है। अच्छा, अल्लाह रसूल की ये बात आपके नहीं है, ये आपके नहीं है, रसूल की बात करते हैं। अरे ये आपके नहीं है, हमारा कोई नहीं है, ये नहीं हमारे सिर्फ अल्लाह रसूल है। शेख बाप, अब सुनो, हाँ, यही किताब है, सुनो, और सुनो, कुछ नहीं है इनके पास। शेख- मैं कुछ नहीं सिखाएंगे शेख, अब से पहले इनके वालिद साहब अब आप- आए थे, वो अब भी आप ये किताब बताइए, लेकर आए थे, ये और किताब भी दुरुस्त नहीं लेकर है आया। जो मैंने सऊदी जवाब से दे छपी। दिया था, वो है वीडियो में जवाब। अब नहीं तार भाई गलत बात मत करें आप, अभी आवाम नहीं उठेगी, ये आवाम नहीं उठेगी, आप गलत बात मत करो। ये किताब अच्छा, ये भी सुनो, ये भी सुन ले, गलत बात मत करो, बैठे 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 इस किताब के अंदर लिखा हुआ है, इस किताब के अंदर बैठे 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 सब लोग बैठे, सब लोग बैठे। इनकार कर रहे हैं कि हमारे उलमा की नहीं है, तो बात भाई किसी की भी हमें क्या लेना देना ये उससे? किताब सऊदी अरब से छपी है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है सफा नंबर 11 पर। हाँ, ठीक एक मिनट है, तार भाई, ठीक है, सुन ले भाई, सुन ले। ये किताब सऊदी अरब से छपी है, जहाँ से ये तालीम हासिल करके आए। 11 सफा नंबर पर लिखा हुआ है, 11 पेज नंबर पर, इस्लाम से खारिज करने वाली बातें। उसमें इस्लाम से खारिज करने वाली बातें जो लिखी है, उसमें दूसरी बात क्या है? लिखते हैं जिसने अल्लाह और अपने दरमियान किसी को सिफारशी बनाया, उसे पुकारा और उससे शफाअत की दरख्वास्त की और उस पर भरोसा किया, वो बइजमाए उम्मत काफिर हो गया। माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। इन्होंने जो दावा ये लिखा, इन्होंने एक मिनट रुको, इन्होंने अभी आप बोलना, इन्होंने ये जो दावा लिखा उसमें लिखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत पर ईमान लाने वाला मुसलमान है, उसको काफिर कहने वाला खुद काफिर है। और ये पूरी टीम इनके सऊदी की कह रही है, जहां से इन्होंने तालीम हासिल की, कि जो हुजूर की शफाअत को तलब करेगा, भरोसा करेगा, हुजूर को शफी मानेगा, वो काफिर है। अब बताइए, मुसलमान को काफिर कहने की बुनियाद पर, और हदीस पाक बुखारी शरीफ की है, मन क़ाल ली अख़ीही या काफिरु फ़क़द बाअ अहदुहुमा, कि जिसने किसी मुसलमान को काफिर कहा, वो कुफ्र अगर उसमें नहीं था तो ये कुफ्र उसी के गले का हार बन जाएगा। तो अब ये खुद काफिर हो जाएगा। जब शफाअत मानने वाले मुसलमानों को काफिर कहने वाला इनकी तहरीर के मुताबिक भी खुद काफिर हो गया, तो पता लगा जो लोग काफिर बना रहे थे पूरी उम्मत को, 14 सदी से जो उम्मत शफाअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाली थी, उस उम्मत को वहां से काफिर बनाया जा रहा है सऊदी से, रहनुमाए हज उमरा व ज़ियारत मस्जिद नबवी किताब से। और उसके मुताबिक ये भी कह रहे हैं कि ये जो हुजूर की शफाअत को मानेगा वो मुसलमान, उसको काफिर कहने वाला खुद काफिर। लिहाजा इनके मुताबिक, शेख बाबू खान साहब के मुताबिक भी अब ये पूरी टीम जिन्होंने किताब लिखी है खुद काफिर हो गए। बेशक बेशक बिल्कुल बेशक, हो गए। बेशक। अब ये लिख अब दीजिए। सुन भी तो ले, अब नहीं सब अब उसका जवाब भी तो सुन ले। बताइए, जवाब बताइए। हाँ, भाई जवाब। ये बताओ, ये किताब मैंने लिखी, यहाँ मेरी बात चल रही है या ये किताब लिखने वालों की बात चल रही है? बताओ जरा सब लोग। सब लोग बताओ, ये बात मेरी चल रही है या उसकी? अब सुने नबी का फरमान, अब सुनो, नबी करीम सुने फरमान नबी का, जो तुमने नहीं सुना, सुने नबी का फरमान। अच्छा सुनो तो क्या कह रहे हैं। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला तसुब्बुल अम्वात, मुर्दों को बुरा मत कहो, जो मर चुका है। ये जितने जिनकी बातें ये कर रहे हैं, ये कोई भी जिंदा नहीं। कहा आप मुर्दों को बुरा मत कहें,
فإن اللہ قد عفدوا إلى ما قدموا، کیونکہ وہ اپنے کیے کو پہنچ چکا ہے، وہ اپنے کیے کو پہنچ چکا ہے. اگر اس نے غلطی کری ہے تو وہ جہنم میں اس کو سزا مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے؟ اور جس کو ایک بار سزا مل جاتی ہے اس کو دوبارہ سزا دی جاتی ہے. آپ نے کسی کو قتل کر دیا، آپ 20 سال کی جیل کاٹ کے آ گئے، اب آپ کو پولیس پکڑے گی دوبارہ؟ بتاؤ لوگوں، بتاؤ پکڑے گی پولیس؟ بھائی وہ تو سزا کاٹ رہے ہیں نا. ہاں اب نالے لگ گئے، وہ سزا کاٹ رہے ہیں، اس کو دوبارہ سزا دے ہی نہیں سکتے. چلو مولانا صاحب اٹھا بات ختم کرو. یہی دین سکھائیں گے، یہی دین سکھائیں گے، آپ خاموش ہو. یہی دین سکھائیں گے. ایسا ہے وہ بار بار اس چیز کے لیے کہہ رہے ہیں تو بات ختم کرو. طاہر بھائی کہہ رہے ہیں ختم کرو. نبی نے کہہ دیا ہے جو مر چکا اس کو سزا مل رہی ہے، اس کو تم سزا نہیں دے سکتے اپنی زندگی. یہ اس کا کاٹ ہے. چلو یہاں تو سمیٹ دو. ٹھیک ہے اب میری بات سنیے. اب یہ بتائیے اس کے مطابق، ارے مولانا شہادت صاحب ہم بس 1 منٹ سن لو پھر ختم کر دے رہے ہیں. سب کی جڑوں بیٹھو یہی رہو گے. آپ سن لیں، اب سنو کی بات سنو دیکھو، سنیں. میں بالکل اخیر کر رہا ہوں بات. ہاں ختم کر دو یہ کر کے. ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں، سنو. دعویٰ تھا کہ شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے مطابق یہ موضوع مناظرہ تھا شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دعویٰ اہل سنت یہ ہوا، سنو، دعویٰ اہل سنت یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے شفاعت فرمائیں گے. یہ ہوا. اس پر انہوں نے کہا کہ یہ اتفاق بس 1 منٹ کی یہ ختم ہو رہی ہے بس. اس کے مطابق یہ بات کہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر ایمان لانے والا مسلمان اور اس کو کافر کہنے والا خود کافر ہے. اس کے مطابق جو کتاب یہ لکھی گئی رہنمائے حج و عمرہ و زیارت مسجد نبی لکھنے والا خود کافر ہو گئے. اب سنو 1 منٹ بھائی، 1 منٹ سنو. سب کو بتایا کوئی بات نہیں ہوگی. اب یہ بتائیے حضرت ان کی سن لو 1 منٹ. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں تیجا دسما کچھ بتاؤ. جو بات ہوگی، سنو یہاں پر جو آفت آئی تھی اس پر بھی بات ہوگی. چلو آپ کی سنو. انتقال ہوا تھا جس کی وجہ سے لوگ مٹی میں بھی نہیں آئے تھے، لوگوں کا نکاح ٹوٹ گیا تھا آنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، آپ بہتر ہے اس چیز پہ پہلے ایک بار بات کر لیں. ہاں بہت بڑھیا. چیزیں سامنے صاف صاف ہو جائے تو زیادہ. چلو ٹھیک ہے. یہ عقیدے کی بات انہوں نے پہلے اتفاق کیا، ساری چیزیں ترتیب سے چل رہی ہیں. لاسٹ نتیجہ یہ ہے، اس کے بعد میں آپ دوسری بات کر لینا. لاسٹ نتیجہ آپ سن لیجئے. سائن کے مطابق ساری بات ہوئی ہے، یہ ریکارڈ بھی ہوئی ہے ویڈیو، آپ لوگ اس سے انکار نہیں کر سکتے. اب میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں، لاسٹ 2 منٹ ہے، آپ بھی 2 منٹ بول لینا. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، موضوع مناظرہ انہوں نے لکھا شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے مطابق ختم کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے شفاعت فرمائیں گے. انہوں نے دعوی اہل حدیث، ان کا یہ ہوا کہ نبی کی شفاعت سے اتفاق ہے، یعنی دونوں دعوے ایک سے ہیں. پھر اس کے بعد میں دونوں کی طرف سے ایک بات لکھی گئی، وہ بات یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر ایمان لانے والا، ارے بھائی ارمان بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر ایمان لانے والا مسلمان ہے اور اس کو کافر کہنے والا خود کافر ہے. ہم نے کتاب دکھائی رہنمائے حج و عمرہ و زیارت مسجد نبوی، یہ کتاب سعودی عرب سے چھپتی ہے. اس میں لکھا گیا جو حضور کو شفاعت کرنے والا مانے وہ کافر. اور یہ انہوں نے کہا کہ جو مسلمان کو کافر کہے وہ کافر. تو لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ جس نے یہ کتاب لکھ کر کے پوری امت کو کافر بنایا وہ سارے لوگ اپنے ہی قول کے مطابق خود کافر ہو گئے. اور یہ بات میں کوئی دنیا دار نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ مدینے کے تاجدار یہ بات کہہ رہے ہیں. وہ فرما رہے ہیں من قال لی اخیہ یا کافر فقد باء احدہما، کہ جس نے اپنے کسی بھائی کو کافر کہا اگر وہ کافر نہیں ہے تو یہ خود کافر ہو جائے گا. لہٰذا پوری سعودی عرب کی وہ ٹیم جنہوں نے لکھا ہے اس کے مطابق امت کو کافر کہنے کے مطابق یہاں کی بات چل رہی ہے، سعودیہ کی بات چل رہی ہے. آپ کے مطابق وہ عقیدے کے مطابب وہ لوگ کافر ہیں نہیں جو آپ کو کافر کہیں اس بنیاد پر. دیکھو طاہر بھائی آپ اس میں نہیں بولو گے. جب یہ بات سنو جب یہ بات طے ہو گئی تو علماء بات کریں گے، تو آپ اس میں اب ہم دونوں کریں گے نا بات. ہم دونوں بات پبلک بھی تو کچھ مان کر رہی ہے.
अरे पब्लिक मार रही है यार, बात का जवाब दे तो दिया मैंने कि वो लोग सजा मिल रही है, उसको पकड़ने वाले, ये तो कोई जिंदा ही नहीं है जिसकी ये बात कर रहे हैं। अब रुको एक मिनट, इस ये आज की किताब नहीं है, अब से 100 साल पहले 50 साल पहले से चल रही है ये सजा किताब। मिल रही है उन लोगों को जिन्होंने ये बात कही, भाई सजा मिल रही है। बिल्कुल मिलेगी, तुम्हारा कहेगा तुम्हारे को मिलेगी, दूसरा कहेगा बस यही उसको बात मैं मिलेगी, कहलवा रहा सबको था। मिलेगी। लिहाजा साबित हुआ कि शफाअत रसूल हक है, और जो इसको काफिर कहेगा मानने वाले को, वो खुद काफिर है। अब इन्होंने कह दिया कि शफाअत रसूल पर ईमान लाने वाला मुसलमान, बिल्कुल उसको काफिर कहने वाला काफिर। लिहाजा सऊदी अरब की हुकूमत जिसने ये किताब छापी, इनके मुताबिक शेख बाबू खान के मुताबिक सब काफिर है। जाओ तुम कहो सबको काफिर मैं क्यों कहते हो, कहूं, आप कहो। अगर औकात है तो जाके वहाँ जाके कह दो। ये आपके मुताबिक ये बात साबित हुई। सऊदी अरब के बच्चे नहीं यहाँ की चली, मैंने लिखी है किताब, मैंने लिखी अब है आप किताब। बताइए। अब आप बताइए, अब आप बताइए। ये मैंने कहा कि भाई उसको सजा मिल रही है। 10 में 20 में पूछ रहा है। आलिम कोई गलती करेगा उसको सजा मिलेगी, सजा मिल अगर रही है। आला हजरत ने कोई गलती करी है तो उनको सजा मिलेगी, अगर अशरफ अली थानवी ने कोई गलती करी है उसको सजा मिलेगी, अगर अब्दुल वहाब ने सऊदी अरब के ने कोई गलती करी है उसको सजा मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी? मिलेगी। बताओ। बिल्कुल मिलेगी, गलती करिए तो तो भाई। आप ये कह दो, क्या होगा, हमसे पूछा जाएगा उनके बारे आप ये में। कह दो ना कि ये किताब जो है वो हम उस पर अमल नहीं करते। कहो आप, मैं आपको बताऊं, आप कहिए ये बात। मैं आपको बताऊं, ये मैंने- आपके मैंने- जहाँ से आपने तालीम हासिल की वहाँ से छप रही है किताब और फ्री बट रही है सब में। तो आप कहिए। चलो अच्छा, बात खत्म कर दो अब। आप कहिए। दुनिया का जिक्र है वो आखिरत से नबी शिफात बताओ। चलो चलो, यार वो बातें करो, अब ये तो हो अब तो आपकी समझ में आ गया ना। जरा एक मिनट सुन लो, एक मिनट, सिर्फ एक मिनट मेरी सुन बात तय लो। होगी, देखो। एक मिनट, मेरा सवाल ये है, हमने आपको बुलाया, हम आपसे सुनना चाह रहे हैं ये बात। तीजा दसवां ये चीज क्या है, ये क्लियर करके बताओ हमें। नहीं करेगा तो आप बताओ, ये नहीं बता, है। आप बताओ, ये नहीं, हम इनसे नहीं सुनना चाह रहे, आपसे सुनना चाह रहे हैं। आप बताओ, आप बताओ। अब देखें आप, बिल्कुल इस्लाम के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो फर्ज हैं, कुछ ऐसी हैं जो वाजिब हैं, कुछ ऐसी हैं सुनन हैं, कुछ ऐसी हैं मुस्तहब्बात हैं। फर्ज के छोड़ने पर आदमी गुनाहगार होता है, उसकी अदायगी उस पर ज़रूरी है। ऐसे ही सुन्नतें कुछ ऐसी हैं कि करना ज़रूरी है और कुछ ऐसी हैं कि करें या ना करें। ऐसे ही बात आती है मुस्तहब की। मुस्तहब वो काम होता है कि करने पर सवाब है, ना करने पर कोई गुनाह नहीं। ठीक है, ये बात आप समझ गए। ये फातिहा और ईसाले सवाब का जो मसला है, ये उम्मत में चूंकि लोग गुनाह में गिरफ्तार हो जाते हैं, अब वो जब दुनिया से चले गए तो अब वो कोई नमाज नहीं पढ़ सकते। दुनिया से जाने के बाद आदमी रोज़ा नहीं रख सकता, हज और ज़कात की अदायगी नहीं कर सकता। अब अगर कमी करके दुनिया से गया है और उस पर उस वजह से अजाब कब्र के अंदर हो रहा है, कौन सी वो चीज़ है कि जो करने से उसके अजाब में कमी हो जाए, कि उसको अजाब में तकलीफ हो जाए? तो हदीस पाक में आया है, इज़ा मातल इंसानु इनक़तअ अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास। सही, जज़ाकल्लाह खैर। कि जब इंसान मर जाता है तो मरने के बाद अब वो कोई काम नहीं कर सकता, सारे अमाल उससे रुक जाते हैं, नमाज रोज़ा हज ज़कात नहीं कर सकता। अब कौन सी वो चीज़ें हैं कि जिसके मुताबिक वो अगर मर गया लेकिन सवाब उसको पहुंचता रहे? तो सरकार ने फरमाया 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे उसको सवाब मरने के बाद भी पहुंचेगा, और जब सवाब पहुंचेगा तो उसकी जिद जो अजाब है वो खत्म हो जाएगी, यानी उसमें कमी हो जाएगी। तो अब कौन सी वो चीज़ें हैं? तो सरकार ने फरमाया वलदिन सालिहिन यदउ लह। एक तो वो कि जो नेक औलाद छोड़ जाए और नेक औलाद उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करती रहे। यहाँ ये कुरान शरीफ पढ़ेगा, तिलावत करेगा, दुआए मग़फ़िरत करेगा, ये ईसाले सवाब कब्र में पहुंचेगा और उसके अज़ाब में कमी हो जाएगी। या फिर ऐसा कि इल्मिन औ इल्मिन युन्तफ़अु बिह, या ऐसा इल्म छोड़ जाए कि जिससे कि लोग इल्म से फ़ायदा हासिल करें और पढ़ने पर उनको भी सवाब मिले और उसको भी सवाब मिले जो इल्म छोड़ करके गया है। तीसरी चीज़ सरकार ने इरशाद फरमाई औ सदक़तिन जारिया, या कोई सदका जारिया कर जाए, कोई नल गड़वा गया कि लोग जब तक पानी पिएंगे उनको भी सवाब मिलेगा और बराबर का उसको सवाब मिलेगा जो ये काम करके गया। क्यों? इसलिए कि हदीस पाक में आया है, मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसना फलहु अजरुहा व अजरु मन अमिला बिहा इला यौमिल क़ियामा, कि जो कोई भी इस्लाम में अच्छे काम की बुनियाद डालता है तो उसको भी सवाब मिलता है और उन लोगों को भी सवाब मिलता है जो उस पर अमल करेंगे, और सबके बराबर इकट्ठा होकर के सवाब उसको मिलता है जिसने अच्छे काम की बुनियाद डाली है। तो अब सदका जारिया का फायदा ये होता है कि जब तक लोग अमल करेंगे उनको तो सवाब मिलेगा, इकट्ठा होकर उसको क्रेडिट पहुंचेगा जो कब्र में बंदा मौजूद है जो करके गया था, यानी उसको सवाब मिलेगा और आज़ाब में कमी होगी। ये सुन्नत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बताई। अब सुनिए, सही, ये जब हो गया ईसाले सवाब, इसे क्या कहते हैं? ईसाले सवाब।
ईसाल का मतलब आता है पहुंचाना, और सवाब का मतलब सवाब। ईसाल सवाब हुआ सवाब पहुंचाना, किसको? मैयत को। अब ये अहादीस से भी साबित है, ठीक है, अहादीस से साबित है। अब ईसाल सवाब की किस्में होती हैं। कभी तो ईसाल सवाब होता है नमाज जनाजा की शक्ल में, उसके लिए दुआ होना, दुआ मग़फ़िरत होना। कभी ईसाल सवाब होता है मसलन तीजा रख लिया या सोम की फातिहा रख ली। ये सब चीजें ऐसी हैं कि अगर आप नहीं करोगे तो आप पर गुनाह नहीं। 10वां, सब लोग 30वां, किसी पे कोई गुनाह नहीं है, कोई नहीं करेगा। 40वां, अगर ना करे कोई तो किसी पर न करने की बिना पर गुनाह नहीं, और करने की बिना पर सवाब। और यही हमारा मैयत के जाने के बाद मकसूद। तो लिहाजा सुन्नी जो काम करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि हमारा मरने वाला वो तो यहां से चला गया हमारे दरमियान से, अब पहुंचने के बाद वो क्या करता है कब्र में, तो वो हमारे लिए वहां से ईसाले फैज करता है। अगर कोई नेक है, साले है, वो है, तो वो वहां से दुआ करता है। क्या दुआ करता है? वो दुआ करता है, परवरदिगार मेरे जो बाकी लोग रह गए हैं मेरे घर वाले, उनको उस वक्त तक मौत ना देना जब तक कि वो ईमान की हालत में ना रहे, यानी ईमान की हालत में ही उनको बुला लेना, जैसा कि मैं आया हूं। उसने हमारे लिए वहां से क्या किया? ईसाले दुआ। क्या की? ईसाले दुआ। और अब वहां से जब उन्होंने हमारे लिए इतना बढ़िया काम किया, ये उनका हुआ हम पर एहसान। और कुरान पाक फरमाता है हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, एहसान का बदला एहसान ही है। जब उन्होंने मरने के बाद हमारे लिए वहां से कब्र से एहसान कर दिया, तो अब हमारे जिंदों का क्या फर्ज बनता है? हमारा फर्ज ये बनता है कि हम भी उनके लिए एहसान करें। वो एहसान ये है कि हम उनके लिए यहाँ से ईसाले सवाब करें। वो ईसाले दुआ कर रहे हैं, हम यहाँ से ईसाले सवाब कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं है कि अगर आप नहीं करेंगे तो गुनाहगार हैं आप करने की वजह से। तीजा, 10वां, 20वां, 40वां बरसी अगर आप ना भी करें तो गुनाहगार नहीं, और करेंगे तो इसमें बहुत फायदा है। मैयत का बहुत फायदा, खुद आपका भी जिक्र करने की वजह से फायदा। तो लिहाजा ये मुस्तहब काम है, और ये हमारे लिए महल नज़र नहीं। हमारे अहले सुन्नत में अगर कोई ये काम नहीं करे तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये सुन्नी नहीं है, ये नहीं कहते हैं हम कि ये सुन्नी नहीं है, बल्कि हम उसको समझाएंगे कि मैयत का इसमें फायदा है, आप ये करो। ये ऐसा काम है कि न करने में तो गुनाह नहीं, लेकिन करने में बहुत सवाब है, करने में बहुत सवाब है। लिहाजा आप सबको करना चाहिए। अब मिसाल के तौर पे जैसे हमने 10,000 रुपए खर्च कर दिए जी, और वो 10,000 इस काम में नहीं, कहीं किसी गरीब को दे दिए, शादी में दे दिए किसी गरीब के, या कहीं मदरसे में दे दिए, मस्जिद में दे दिए, हमारा दिल कह रहा है नहीं करेंगे, ठीक है, फिर उसके लिए पीछे क्यों पड़ते हैं लोग? अब सुनिए, जो ये कहे कि नहीं 40वां ही करके ही साले सवाब होगा, आप मस्जिद में नहीं दे सकते, तो ये किसी हदीस में ऐसा नहीं, किसी अइम्मा किराम की किताबों में ऐसा नहीं, ये किसी पर नहीं थोपा जाएगा कि नहीं आपको 40वें के नाम से ये करना। सुने बात सुने, 40वें का मतलब क्या होता है? 40वें का मतलब होता है, ताहिर भाई अपनी बात कह के उधर ना जाए। और मैं भी थोड़ा सा बोलना अभी बोलना, बात मुकम्मल होने दो, आप बोलना। 40वें का मतलब बता रहे हैं 100% सही। 40वें का मतलब क्या होता है? 100% सही बात। सुन लो, आपकी तस्दीक की जरूरत हाँ है। सही। हमारा आपका बुनियादी इख्तिलाफ है तो है, आप ये नहीं कि ये बातें करके आप जो है इनसे घुसना चाहोगे, दिखाओगे मैं भी आपकी तरह हूँ। अभी बहुत चीजें बाकी हैं हजरत, और ये कह के आपने पूरी सऊदी अरब को जो है मुस्लिम करार दे दिया, ये बातें लिख करके, ये तो बाद में होगी बात। अभी आपके ऊपर सोशल मीडिया पे लोग क्या कहेंगे आपसे, वो अलग चीज है। मैं ये आपसे कह रहा हूँ 40वें का मतलब होता है कि मैयत को गए हुए 40 दिन मुकम्मल हो गए होते हैं। लोगों ने ये तरीका बनाया हुआ है कि कोई ऐसा दिन मुतय्यन कर लिया जाए कि जिसमें सारे लोगों को बता दिया जाए कि अब वो फातिहा का दिन आ गया जहां पर इज्तिमाई तौर पर आप जिक्र करेंगे, इज्तिमाई तौर पर कुरान की तिलावत करेंगे, ऐसा अल्लाह और रसूल का जिक्र करेंगे कि इकट्ठा होकर के। हो सकता है कि अगर अकेला अकेला हर आदमी करता गुनाहगार होता, नहीं अल्लाह की बारगाह में कबूल होती वो बात। लेकिन जब जमात की शक्ल में होगी तो जमात में कोई ना कोई अल्लाह का नेक बंदा होता है, वो दुआ करेगा तो हो सकता है उसकी दुआ से सारे लोगों की दुआ कबूल हो जाए। तो इसलिए ऐसा दिन मुकर्रर किया जाता है 40वें के नाम पर कि 40 दिन हो गए, अब सब लोग आ जाए रिश्तेदारी में से, और वो मैयत जो 40 दिन पहले दुनिया से गई है उसके लिए इकट्ठा होकर के हम सवाब भेज सकें, तो इसको कहते हैं 40वां। अगर कोई इकट्ठे ना होकर के, कोई किसी वजह से अपने घर से नहीं आ पाया, अपने अपने घर रह गए, लॉकडाउन लग गया, या फिर जो है ट्रैफिक लगा हुआ है, अपने अपने घर से बारिश हो गई, सबने फातिहा पढ़ ली, इकट्ठा नहीं भी हो तब भी सवाब पहुंचेगा। और अगर दावत के तौर पर कोई किसी को कह रहा है कि भाई दावत करो, 40वें की दावत आइए, शरर इसकी कोई इजाजत नहीं है कि आपको दावत बाकायदा की जाए कि भाई जैसे शादी की दावत होती है 40 में खाना खाने आना आपको, ये दावत इस्लाम में जायज नहीं है। आप गुरबा और फुकरा और मसाकिन को खिलाइए, और वो मेहमान जो दूर से आए हुए आपके मेहमान हैं आप उनको खिलाइए। एक चीज और बात करते हैं, ये तरीका है, इसके मुताबिक आप अपना काम कीजिए। एक सवाल ऐसा काम है ये
कि अल्हम्दुलिल्लाह इस पर आपको भी सवाब मिलता है और उस मैयत को भी सवाब मिलता है। लिहाजा हर सूरत ईसाले सवाब करना जायज़ है और उसकी शक्ल तीजा, 40वां, सोम, बरसी, ये सारी चीज़ें हैं और इसमें आप करें बिला कबात। एक सवाल हजरत इसी टॉपिक पे बहुत बड़ा है, ये कहते हैं कि जो खाना सामने रख कर ईसाले सवाब पढ़ दिया जाता है वो खाना खाना हमारे तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है, ये एतराज़ है। ये कहते हैं ताहिर भाई ने मुझसे कहा था इस चीज़ के लिए। अब ताहिर भाई का ये हुआ दावा, क्या हुआ दावा? ये हुआ कि कोई खाना अगर उस पर कलामुल्लाह पढ़ लिया गया या कोई जिक्र पढ़ लिया गया सामने रख करके, तो अब उसका खाना नाजायज है, ये ताहिर भाई कह रहे हैं। अब ताहिर भाई बताएंगे भाई कहाँ से इन्होंने इस्लाम में ये चीज पढ़ी है या किस आलिम से सुनी है वो बता दें, और अगर आपने नहीं पढ़ी है इनसे सुनी है तो ये बैठे हुए हैं, ये बता दें हजरत कहीं ऐसा है? अभी मैं बताइए करूँगा, आपकी बात करें, सुने अभी हजरत बता दी ना बात, बता दें। मैंने कहा जितनी बातें बताई ठीक है ना, सही बताई, इत्तेफाक कर रहे हैं, सही बताइए, ठीक है? हाँ ठीक है। इत्तेफाक कर रहा हूँ मैं उन बातों से जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक बताई। आपने हदीस पढ़ी, पहले हदीस पढ़ के बताया कि 3 चीजों का सवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लैसा मिन शैइन युक़र्रिबुकुम इलल जन्ना व युबईदुकुम मिनन नार इल्ला क़द अमरतुकुम बिही। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो तुमको जन्नत में ले जाने वाली थी और मैंने तुमको बताना दी। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुमको जन्नत में ले जाने वाली थी और मैंने तुमको बताना दी। 3 चीजें नबी ने बता दी। आपने बताया सदका जारिया और इल्म और औलाद, 3 चीजें बताई जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। 3 चीजें कि मरने के बाद सिर्फ 3 चीजों का जो अजर मिलता है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। अब हम जो कहते हैं, हम ये कहते हैं कि ये 3 चीजें नबी ने बताई, मेरे भाई यहीं पर रुक जाओ, नबी से आगे बढ़ने की कोशिश मत करो, इतना काफी है। अगर तुम आगे जो काम करोगे, अगर नबी ने कह दिया कि मैंने तो तुम्हें ये बताया ही नहीं था जो तुम लेकर आ रहे हो, तुम करके आ रहे हो, ये तो मैंने बताया ही नहीं था, मैंने तो सब चीजें बता दी तुमको जन्नत में जाने वाली, लेकिन ये तुम कहां से लेकर आए हो जो तुमने नए काम किए हैं, ये काम कहां से लेकर आए हो? अगर नबी ने उस दिन ये कह दिया तो फिर क्या होगा इन लोगों का, ठीक है ना। बाकी जब 3 चीजें बताई, इन 3 चीजों में वो सब कुछ आ जाता है जो मरने के बाद लोगों को फायदा जिस चीज से पहुंचता है। सदका जारिया अगर ये हैं, इनकी अगर इनके वालिद साहब मर गए हैं, ये जो भी काम अपने वालिद साहब के लिए करेंगे उसका अजर मिलेगा। लेकिन मैं चाहूं कि इनके वालिद साहब को पार्सल कर दूं, तो ये तो मेरी अपनी मर्जी होगी, मेरे नबी ने तो नहीं बताया कि ऐसे पार्सल कर देना, ठीक है ना। अगर ऐसे पार्सल करने से जन्नत में चले जाते तो कोई करोड़पति अरबपति कोई जन्नत से महरूम नहीं रहता, सब जन्नत में चले जाते, सब जन्नत में चले जाते। एक हाफिज को खड़ा कर देते कि बेटा हमने तुमको खरीद लिया, तुम जिंदगी में पढ़ते कुरान, हमारे बाप को बख्शते रहो, वो जन्नत में चले जाते। समझ रहे हैं? नबी ने जो 3 चीजें बताई ये हमारे लिए काफी है। अगर हम इन 3 चीजों के अलावा कहीं दूसरा काम करते हैं और कयामत वाले दिन हमारे नबी ने अगर हमसे ये कह दिया कि तू ये क्या करके लाया, ये तो मैंने बताया ही, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बहुत सारे सहाबा का इंतकाल हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादों का इंतकाल हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कुछ नहीं किया था और ना ये बताया था, ये तो हमने अपनी तरफ से घड़ा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया और अल्लाह ताला ने भी कुरान में बताया कि इन हिया इल्ला अस्माउन सम्मयतमुहा, ये सिर्फ नाम ही नाम है जो घर लिए हैं, अंतुम व आबाउकुम, तुमने और तुम्हारे बाप दादाओं ने, मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, अल्लाह ने इसमें कोई दलील नाजिल नहीं फरमाई। तो जो हमारे नबी ने बता दिया, क्या हमारे लिए काफी नहीं? नबी ने हज्जतुल वदा में बताया, हज कर रहे हैं आप, और वो आपका पहला और आखिरी हज था, और आपने कहा अय्युहन नास, ए दुनिया के इंसानों, ए दुनिया के इंसानों, इन्नहु ला नबिय्य बादी, अब मेरे बाद कोई नबी नहीं है, वला उम्मता बादकुम, और तुम्हारे बाद अब कोई उम्मत भी नहीं है, अला खबरदार, फअबुदू रब्बकुम, तो तुम अपने रब की ही इबादत करना, वसल्लु खमसाकुम, 5 वक्त की नमाजें पढ़ना, वसूमु शहरकुम, 1 महीने के रोजे रखना, वअद्दु ज़कात अम्वालकुम, अपने मालों में से ज़कात अदा करना, व तुहज्जु बैत रब्बकुम, और अपने रब के घर का हज करना, व अतीउ औलात उमूरकुम, और अपने मुस्लिम हुक्मरान की बातों को मानना। कहा अगर तुमने ये 6 काम कर लिए, तदखुलुल जन्नत रब्बकुम, तो तुम अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाओगे। इन 6 में कोई भी ये नहीं है जो बताए बाद में बताए। तो हम कह रहे हैं कि ये 6 काम हमारे नबी ने जो बताए ये हमारे लिए काफी नहीं है, अल्लाह के बंदो ये हमारे लिए काफी है। नबी से आगे बढ़ने की बात
बात मत करो, अल्लाह से आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। जितना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया ये हमारी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। हम अपने नबी की ही सुन्नतों पर अमल कर लेंगे तो वो हमारे लिए काफ़ी है। हमको आगे बढ़ा के अपनी तरफ से कुछ घड़ने की क्या ज़रूरत है। अभी आप इन्होंने जो कहा आप इससे मुतमईन हैं तो हम भी मुतमईन हैं। इनमें कोई दखलंदाजी इन्होंने करी है, वो गलती करी तो वो हमें साफ वाजे करें। क्या नाम है आपका? हनीफ। हनीफ भाई ने बहुत बढ़िया बात की। इन्होंने बताया रोजे के बारे में, इन्होंने बताया नमाज के बारे में, सब चीज़ें, ठीक है। ये मौजू हो गया अलग। ईसाले सवाब की बात से शुरू की थी बात आ गई नमाज रोज़ा हज ज़कात पे। ये बताइए नमाज रोज़ा हज ज़कात के बारे में किसी को कोई इख्तलाफ है? नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं है। बात ताहिर भाई ने शुरू की ईसाले सवाब से कि तीजा 40वां 10वां इनको भी बताओ। यहाँ से बात शुरू हुई थी। मैंने हदीस पाक पढ़ी कि हुजूर ने फरमाया जब इंसान इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास, कि जब इंसान दुनिया से चला जाता है सारे काम रुक जाते हैं सिवाय 3 कामों के कि उनका सवाब बराबर उसको पहुंचता रहता है। 3 के अलावा किसी का सवाब नहीं पहुंचता। 3 बता दिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सुनो, 3 बता दिए। अब वाजे होने 3 दो। जो बताए हैं वो 3 की कैटेगरी तो देखो कितनी शक्लें हैं उसकी। जैसे फरमाया नेक औलाद छोड़ गया। अब नेक औलाद छोड़ने का मतलब कि वो उसके लिए दुआ मग़फ़िरत करें। आप बताइए तीजे 40वें के अंदर कौन सी ऐसी औलाद है जो अपने माँ बाप के लिए इसाले सवाब नहीं करती है? कोई दुआ मग़फ़िरत का ही मतलब है या नहीं पहुंचाना चाहती है? आप बताओ। यानी औलाद नेक छोड़ गया जो इसाले सवाब करे, ये औलाद चाहती है, औलाद करती है, शामिल है। ऐसे ही फरमाया गया कि कोई इल्म छोड़ जाओ। इल्म छोड़ने का मतलब यह है कि या तो खुद किताबें लिख जाओ या किताबें खरीद के उम्मत के अपने मैयत के नाम पर क्या है उसको तकसीम कर दो कि लोग पढ़े। जैसे आप पारे बांटते हो, पारे बांटने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने बांटेगी तभी अजर मिलेगा। इतना ध्यान रखना। अब सुनो, मस्जिद के इमाम साहब जो पारे बांटते हैं, क्या लगता है आपको कि ये बांटना इनका गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। कहीं से आते ही होंगे, देखो ताहिर भाई की बात सही है, कहीं से आते होंगे, कोई ना कोई भी देते अब हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। ये नबी ने कहा, मैंने नहीं कहा, ये नबी ने कहा है। नबी ने हदीस नहीं बताया। अच्छा रुको एक मिनट, कौन लोग ऐसे हैं? ये नबी ने कहा। अगर औलाद का मिलता है, अगर ये हो कि औलाद ही बांटेगी तभी उसके हक में मकबूल होगा, ये आपने कहाँ से पढ़ा है? कहीं ऐसा नहीं है, कहीं ऐसा नहीं है। बल्कि हदीस पाक में ये है, सुनो, हदीस पाक में ये है मन सन्ना फिल इस्लामी सुन्नतन हसना। मन इसके अंदर उमूम है, ज़वील उक़ूल सारे आ गए। जिसने भी नेक काम की बुनियाद डाली उसको सवाब मिलना है। चाहे औलाद हो तो भी सवाब बाप की तरफ बाप को मिलेगा, या फिर चाचा हो तब भी। औलाद की कैद नहीं है उसमें। उसमें यह है कि जो भी किसी के तरफ से कोई काम करेगा उसको सवाब मिलेगा। ऐसे ही एक काम बताया भाई अरमान भाई, ऐसे एक काम बताया उन्होंने सदक़े जारिया, हदीस पाक में है, इन्होंने इत्तेफाक किया। सदक़े जारिया का मतलब कि काम होता रहेगा, सवाब मिलता रहेगा। हुजूर से हदीस पाक से साबित, सरकार के सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी माँ की तरफ से एक कुआं खोद दिया। सुन रहे हैं सब लोग? कुआं खोद दिया। जैसे ध्यान रखना, बेटे ने अपनी माँ के लिए खोदा है, इतना ध्यान रखना, ये नबी बता चुके हैं। अब सुनो, जैसे कि कोई आज के दौर में सरकारी नल लगा रहा है या कोई टैंक लगवा रहा है, फ्रिज लगवा रहा है मस्जिद में, ये सब उसी की अक़साम है, उसी की शक्लें हैं। उस जमाने में ये चीजें नहीं थी, कुएं होते थे पानी पीने के लिए। तो हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी माँ की तरफ से उनके विसाल के बाद में कुआं खुदवा दिया और कहा कि सब लोग पानी पिएंगे, सवाब मिलेगा और सबके बराबर सवाब मेरी माँ को मिलेगा। हुजूर ने इरशाद फरमाया हाजा बिरुल उम्मे साद, ये उम्मे साद की माँ का कुआं है। यानी जितने लोग इससे सवाब हासिल करेंगे सबका सवाब उम्मे साद को पहुंचेगा। अब मैं आपसे कह रहा हूँ, खुदवाया औलाद ने, लेकिन सवाब किसके जरिए पहुंच रहा है? जो पिएंगे। तवज्जो आपकी, यानी खुदवाया औलाद ने, लेकिन सवाब पहुंचाने में सारे शरीक। तो पता ये लगा कि सिर्फ औलाद से ही सवाब नहीं पहुंचेगा, औलाद एक जरिया बन सकती है। वो क्या करे, कुरान शरीफ बांट दे, लेकिन पढ़ेंगे सारे लोग मोहल्ले के, सवाब उन्हीं को पहुंचेगा। समझ रहे? हाँ, मसला वही है, इन सारी चीजों से पता ये लगा, हजरत उम्मे साद के कुएं से पता ये लगा कि इसाले सवाब हक है और सवाब पहुंचाना सही है। औलाद पहुंचाएगी, सवाब पहुंचाना सही है। सदक़े जारिया करो, सवाब पहुंचाना सही है। ये मैंने हदीस से समझा दिया, बयान कर दिया, आप भी कह रहे हो हक है, तो लिहाजा आपके मुताबिक भी ये साबित हुआ। हाँ, ये बात आई ना, कौन आवाम है ये इनके काम
हाँ ठीक है बैठो, मेन मुद्दे की बात है। पहले एक बात हो जाए, ये सारी बात समझ में आ गई सबके? हाँ आ गई। अब इधर कैमरा घुमा, इसाले सवाब करना हक है या नहीं है? हाँ है। आप लोग इंशाल्लाह 40वां करें, 10वां करें, 3जा करें। अब सारी चीजें ये कह रहे हैं कि हदीस से साबित अब इस पर आ जाओ जरा। अब इसको अगर कोई गलत कहेगा तो वो दलील देगा, और गलत मैं जब तक बैठा हूँ ये साबित करें, बाद में नहीं कहेंगे गलत है। फिर कह रहा हूँ सही है। अगर जनाजा हो या फिर लेके जाते हो, अगर सलाम पढ़े तो वो ये वही चीज है जो नबी ने बताई, इतना ध्यान रखना। इसमें कोई हरज नहीं है। अच्छा, तो उन्हें बिदती कहना सही है ना? बिदती से मुराद अगर कहेगा बिदती सैया कर रहे हैं ये, तो गलत है कहना। बिदती कहना उसको गलत है। बिदती का मतलब ये है, बिदती का मतलब ये है कि उसने वो काम किया कि जो हुजूर ने नहीं किया था और इस्लाम से टकरा रहा है, इस्लाम से टकरा रहा है। अब ये बताइए, हुजूर पर सलातो सलाम पढ़ना, अल्लाह पाक फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अब ये सुनने के बाद वाजिब हो जाता है, आप पढ़ें सब लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सय्यिदना करीमना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम इन्होंने ही पढ़ा, आपने देखा, ठीक है, पढ़ लेंगे। अब इसका मतलब पढ़ने के बाद अगर कहें कि पढ़ना सही नहीं है, तो इसका मतलब कौल में और अमल में तजाद है, टकराव है। इसलिए जो करो वो कहो, जो कहो वो करो। वो हदीस जो पढ़ी थी, मेरे उम्मती वो बात कहेंगे जो बात नहीं सुन रहे हो आप सवाल कायम करके सुनते क्यों नहीं है भाई? आप सुनिए, इन्होंने हदीस पढ़ी थी कि उम्मती वो काम करेंगे जो नहीं कहते हैं, और वो करेंगे जो नहीं कहते हैं, यानी के खिलाफ करेंगे उसका, ठीक है। हालांकि ये वो काम कर रहे हैं जो ये नहीं कहते हैं, मना करते हैं सलाम से। अब हालांकि आप जब सबके सामने पढ़ रहे हो तो अकेले में आप एतराज भी मत किया करें। अब देखें कुरान पाक में अल्लाह पाक तो जवाब दूंगा मैं। बेशक अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह और उसके फरिश्ते अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजते हैं, तो ए ईमान वालों तुम भी दुरूद और सलाम भेजो। यह है आयत करीमा का मफहूम। अब अल्लाह पाक फरमा रहा है कि अल्लाह भी अपने हबीब पर भेज रहा है दुरूद, तो और फरिश्ते भी सारे भेज रहे हैं, तो ए ईमान वालों तुम भी भेजो। जैसे कहा नमाज अदा करो, हुक्म है, तरगीब है, ऐसे ही फरमाया तुम भी दुरूद और सलाम भेजो। अब भेजो कब, ये नहीं फरमाया। क्या मतलब हुआ इसका? भेजो, चाहे खड़े हो तब भी भेजो, चाहे बैठे हो तब भी भेजो। अब अगर कोई बैठ के सलाम पढ़ रहा है हजरत तो भी सही है, और खड़े होकर हाथ बांध के सलाम पढ़ रहा है तो भी सही है, चलते हुए पढ़ रहा है तो भी सही है, बैठ के पढ़ रहा है तो भी सही है, नमाज जनाजा के पीछे पढ़ के जा रहा है तो भी सही है, नमाज जनाजा के बाद 40वें में पढ़ रहा है तो भी सही है। क्योंकि कुरान फरमा रहा है, अल्लाह पाक फरमा रहा है दुरूदो सलाम भेजो, यानी जितनी कसरत से भेजो, और जितनी कसरत से भेजोगे उतना ही। अब हुजूर को इसका फायदा ये नहीं है कि हुजूर की मंजिलत ज्यादा हो जाएगी, बल्कि इसके बदले में क्या होगा कि इन्हीं का ही क्या फरमाया, जिसने मुझ पर 10 मरतबा दुरूद भेजा तो क्या है उसका नतीजा कि अल्लाह पाक उसके दर्जात बुलंद फरमाता है। यानी भेज रहे हैं हम हुजूर पर, तो हुजूर के दर्जात बुलंद नहीं हुए, क्योंकि उनका तो मामला यह है कि हर आने वाली घड़ी अल्लाह पाक उनको बुलंद फरमा रहा है। तो एक मिनट, हमारे दुरूद भेजने से हुजूर पर हुजूर का फायदा नहीं है, हुजूर तो अल्लाह की बारगाह के मुकर्रर। अरे जनाजे के पीछे सलाम की बात चल रही है, हमारा खुद का फायदा है कि अल्लाह ने फरमाया कि तुम अगर मेरे हबीब पर दुरूद भेजोगे तो तुम्हारे दर्जात बुलंद किए जाएंगे। तो पता लगा ये ऐसा काम है कि जिससे दर्जात बुलंद होंगे। अब पीछे औलाद चल रही है, जब नमाज जनाजा के पीछे औलाद चल रही है, वालिद दादा चाचा चल रहे हैं, वो भी सलाम भेज रहे हैं। ये मैयत अब दुरूद सलाम नहीं भेज सकती, क्योंकि अब इसकी जबान और मुंह बंद हो गया। अब ये पीछे वाले जो हैं ये नियत करके भेज रहे हैं कि पढ़ हम रहे हैं लेकिन सवाब इसको पहुंचे। तो अब पता ये लगा कि परवरदिगार अब ये काम नहीं कर सकता अपने बुलंदी दर्जात का, लेकिन हम इसकी तरफ से भेज रहे हैं, लिहाजा इसके गुनाहों को माफ फरमा के इसके दर्जात को बुलंद फरमाते हैं। जनाजे की नमाज में एक मिनट रुको, एक मिनट, इस बात से आप लोग सबकी समझ में आ गई? हाँ जी, बात समझ में आ गई। एक सवाल मुझे नहीं आई, एतराज। हाँ, हजरत का एतराज सुनो। ठीक, अब एतराज क्या है इस पर, वो एतराज हमारा सुन ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अहदसा फी अमरिना हादा मा लैसा मिनहु फहुवा रद्द। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हमारे इस लाए हुए दीन में, मन अहदसा फी अमरिना हादा, हमारे इस लाए हुए दीन में किसी ने कोई ऐसी बात बढ़ाई जिसका हमने हुक्म नहीं दिया है, फहुवा रद्द, तो उसको रद्द कर दिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा।
समझ रहे हैं? ठीक। नबी ने कहा। दूसरी हदीस में आप सबने इरशाद फरमाया, कहा मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्द, कि जिस किसी ने दीन में ऐसा काम किया जिसका हमने हुक्म नहीं दिया है, वो काम दीन में उसने कर लिया, फहुवा रद्द, तो वो रद्द कर दिया जाएगा। हमारा एतराज हजरत जी ये है कि हमारे नबी ने हमको दीन सिखा दिया, पूरा दीन हम तक पहुंचा दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया, दुरूद भेजोगे अजर मिलेगा उसका, सलाम भेजोगे उसका अजर मिलेगा। लेकिन एक चीज अगर आप राइज कर लेंगे तो वो तुमने नबी के दीन में सेध लगा दिया, और तुमने नबी का दीन तुम्हारे लिए काफी नहीं रहा, तुमने एक एक्स्ट्रा बात बढ़ा दी नबी उसमें। जनाजे के ले जाने के टाइम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जानते थे कि सलाम पढ़ना अच्छी बात है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नहीं जानते थे कि सलाम पढ़ना अच्छी बात है। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नहीं जानते थे कि सलाम पढ़ना अच्छी बात है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हसन हुसैन, ये जितने हैं नीचे आगे आके किसी वो कोई नहीं जानता था। आज हमको पता चला कि हम भाई सलाम पढ़ेंगे तो ज्यादा अजर मिलेगा, इसका अजर मिलेगा। अजर तो मिलेगा अलग, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कह दिया कि तूने वो काम किया है जिसका मैंने हुक्म नहीं दिया, और नबी ने तुमसे मुंह फेर लिया, तो उस वक्त तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है। नबी ने उसका हुक्म नहीं दिया, तुमने एक राइज किया, आज तुमने सिर्फ सलाम पढ़ना शुरू किया, दूसरा ढोलक बजा के सलाम पढ़ना शुरू करेगा, तीसरा डीजे बजा के सलाम पढ़ना शुरू करेगा, और एक ये नया दीन राइज हो जाएगा। हम कह रहे हैं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन के 1400 साल पहले सिखा दिया, हमारे लिए वही काफी है। हमको एक्स्ट्रा करने की क्या जरूरत है, अपनी तरफ से बढ़ाने की क्या जरूरत है? अगर हमने अपनी तरफ से बढ़ाया किसी काम को, और कयामत वाले दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि तू तो वो चीज लेकर आया है, तू तो वो शख्स है जिसने कि तूने मेरे दीन को ही बदल दिया, तो फिर हम क्या जवाब देंगे? तो इसलिए हम कहते हैं कि जितना नबी ने बता दिया है उतना जनाजे की को लेके जाओ, और खामोशी से, जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया, ऐसे लेके चले जाओ। दुरूद शरीफ तुम सुबह से शाम तक यहाँ बैठ के पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। नबी ने दूसरी बात ये है कि नबी ने हमको हर चीज बता दी। नबी ने कह दिया मैंने तुमको सब चीज बता दी। अब ये सवाल एक और पैदा हो जाएगा कि नबी ने हमको ये इतनी अच्छी चीज थी, ये नहीं बताया हमारे नबी ने कि सलाम भी पढ़ते जाना, ठीक है ना, ये नहीं बताया, ये बहुत बड़ा एतराज हो जाएगा। तीसरी चीज ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा बता दिया वैसा ही कर लो, ये हमारे लिए काफी है। हमारे नबी ने बताया तुम जिस वक्त चाहो, जब चाहो दुरूद सलाम नबी पर भेज सकते हो, लेकिन अपनी तरफ से कोई ऐसी चीज मत राइज करो कि चाहो भी सब लोग मिलकर ऐसा काम करो। नबी ने हमको बता दिया कहीं भी दुरूद पढ़ो, और नबी ने हमको, अगर वो हम दुरूद यहाँ के बजाय जाके हम ऐसी जगह पे पढ़ने लगे जहाँ हमारे नबी ने नहीं पढ़ा, जहाँ हमारे नबी ने नहीं बताया, तो वो हमारे राइज करना हमको जरूरत नहीं है। हमारे लिए जितना हमारे नबी ने दीन सिखाया अल्हम्दुलिल्लाह वो काफी है। हम उससे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, और जो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो हमारा अल्लाह वहदहू ला शरीक ने बता दिया कुरान करीम में, कहा वमन युशाक़िक़ रसूला मिन बअद मा तबय्यन लहुल हुदा, कि जिसने हिदायत आ जाने के बाद नबी की बात को नहीं माना, नबी को तकलीफ पहुंचाई, फयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, और जो मोमिनों का रास्ता था उस रास्ते को छोड़कर कोई दूसरा रास्ता अपनाया, अल्लाह वहदहू ला शरीक कहता है नुवल्लिही मा तवल्ला, तो हम उसको उसी रास्ते पर डाल देंगे, व नुस्लिही जहन्नम, और उसी रास्ते से वो जहन्नम में चला जाएगा, वसाअत मसीरा, और जहन्नम की तरफ बुरा ठिकाना है। हमारा तो मकसद ये है, हम नहीं कहते हैं कि दुरूद सलाम पढ़ने को हमने मना किया। अरे बात तो पूरी बात तो मैंने कहा जनाजे के साथ मना किया, जनाजे के साथ मना किया। मैंने कहा जनाजे के साथ मना किया। मैंने कहा ये बिदअत उसको कहते हैं जो नबी के, इन्होंने बिदअती बोला, बोला बिदअती, और शकील भैया का हाथ क्या बिदअती बोला, बिदअती, अब सुनो बिदअती बोला, सुनो। अच्छा एक चीज और, कब्र में ऐदनामा लगाना चाहिए या नहीं, और कब्रिस्तानों में चप्पल उतार के जाना चाहिए या नहीं, इसके बारे में, इसके बाद में भी होगा, अभी रुका है। अब सब चीज सवाल जवाब के लिए ही है, वो तो जो चीज हो गई थी वो तो हो गई है, ठीक है, अब सवाल जवाब के लिए ही है। इन्होंने जो बात बयान की, कहा कि हुजूर ने फरमाया है तो इसलिए जब चाहो तब पढ़ो, कहा इन्होंने तार भाई, जब चाहे तब, जब दिल चाहे तब, लेकिन उस जगह पर राइज मत करो कि आओ भाई सब मिलकर तुम ऐसा काम करो, राइज मत करो, ये मैंने कहा, ठीक है, क्योंकि ये इससे शक्ल बदल जाती थी। मिलके जो है हम सलाम पढ़ लेंगे तो सवाब पहुंचेगा। तो नबी इतना अच्छा जानते थे जो तुमने सिखाया, मन ने क्यों करा? नबी ने क्यों नहीं नहीं बना रहे हूँ
हम मेरी बात सुनिए। हाँ देखो ना सब जगह यानी कि सब जगह पढ़ो, लेकिन राय में करो पढ़ना। हाँ सुनो भाई, इधर देखो, सब जगह सुन ले इधर देखो ताहिर भाई, आप जो है जब हम गुफ्तगू करेंगे वो भी सुने आप, ठीक है, क्योंकि सवाल कायम करके आदमी को इधर उधर देखे हाँ, वो तो जवाब जहन में नहीं आएगा। इन्न नफ्सा ला ततवज्जहु इला जिहतैन फी वक्तिन वाहिदा। माइंड जो है एक वक्त में एक ही जगह लग सकता है, दो जगह नहीं लग सकता, इसलिए उधर उधर न देख के हमारी सुना करें। इन्होंने जो बयान किया कि इकट्ठे होकर नहीं पढ़ सकते, इनके पास इस पर कोई दलील नहीं कि हुजूर ने मना किया हो कि इकट्ठे होकर मत पढ़ो, अल्लाह पाक ने मना किया हो कि इकट्ठे होकर मत पढ़ो। हाँ हम बताएंगे कि अल्लाह के इसी हुक्म से ये साबित हो रहा है कि इकट्ठे होकर पढ़ लेना चाहिए। क्यों? वो देखें आप, अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना। अल्लज़ीना काय का सेवा है और किस लिए बोला जाता है, जरा बताइए। अल्लज़ीना किस लिए बोला जाता है? मैं आपको वक्त दे रहा हूँ, सब लोगों से कहा कि सब लोगों से कहा पढ़ा करो। हाँ सुनो, क्या सब लोगों से सब लोगों से कहा पढ़ा सब करो। का मतलब क्या होता है? सब, सब का मतलब होता है हाँ, अल्लज़ीना, सब का मतलब होता है सब लोग पढ़े, यानी ठीक है, सब सब एक को बोला जाएगा कि ये एक चाचा जो है सब हैं, हो जाएगा? ये नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों होगा? सब सब पढ़े अपने अपने हिसाब से। ये जमात जो है इसको मिला करके होगा सब, यानी सब मिलकर पढ़ो। अब देखो कहीं नहीं है, अगर ये दिखा दे कहीं हदीस में कि मिलके क्या चीज? इन्नल्लाह नमाज जनाजा वाली एक बात तो हाँ, एक बात तो पूरी हो जाने दो। सुनो सुनो, अरबी जो है, अरबी जो है, अरबी फुसहा अरबी जो है, अरे सुनो भाई, एक एक करके सब बात होगी, सब बात होगी। अरबी जो है, अरबी ये ग्रामर के एतबार से समझी जाती है, ग्रामर के एतबार से। ये नहीं कि एक फुसहा अरबी है कुरान हदीस की और एक दूसरी है जो वहां पर जो ऊंट चराने जाते हैं और वो चलने जाते हैं, वो आमिया, आमिया कहते हैं उसको हजरत, जो आपको बता नहीं पा रहे थे, आमिया कहते हैं उसे। वो जबान आमिया होती है, यानी देहाती जबान, बद्दू अरबी लोगों की जबान, देहाती जैसे कहते हैं। तो कुरान को देहाती जबान से नहीं समझा जाएगा, कुरान और हदीस को ग्रामर के एतबार से, यानी कुरान और हदीस के मुताबिक ग्रामर भी उसी की मुआफ़क़त करता है। और कभी अगर ग्रामर में कोई समझने में वो हो तो ग्रामर की गलती हो सकती है, कुरान और हदीस में ऐसा गलती नहीं होगी, कुरान में गलती नहीं होगी, हदीस में नहीं होगी। अब देखें एक मिनट, हमारे हुजूर को इल्म गैब, अरे बात अभी चल रही है, वो पहले हो गई। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। ये मलाइका क्या है? मलाइका ये मलक नहीं है इसमें कि एक फरिश्ता, मलाइका यानी बहुत सारे फरिश्ते। अब आप बताइए, इधर देखिए, आप बताएं कि फरिश्ते जानते हैं आप कितने? गिरोह दर गिरोह फरिश्ते हैं। अब ऐसा तो नहीं है एक फरिश्ता है मोहम्मदपुर में, दूसरा है अटामांडा स्टेशन पे, तीसरा है रिचा, बल्कि फरिश्ते तो इतने हैं कि गिरोह दर गिरोह होते हैं। अब अल्लाह पाक फरमा रहा है इन्नल्लाह व मलाइकतहु, यानी बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं। अब आप ये साबित कीजिए कि इस हुक्म के मुताबिक ये है कि अलग अलग फरिश्ता भेजता है, अलग अलग भेजते हैं, लेकिन जहां पर इज्तिमाइयत हो जाए वहां पर सब मिलके भेजेंगे या नहीं? बिल्कुल मैं जवाब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदीस पाक में आया है 70,000 फरिश्ते सुबह को हाजिर होते हैं और 70,000 शाम को हाजिर होते हैं। अब ये बताइए 70,000 एक है या बहुत सारे हुए? अकेले हुए या जमात हुई? अकेले हुए या मिलकर पढ़ रहे हैं? और हुजूर की बारगाह में, और हुजूर की बारगाह का यहाँ तक कितना है आप देख लो, 70,000 अगर खड़े होंगे तो भीड़ लगेगी नहीं लगेगी? इज्तिमा होगा या नहीं होगा? 70,000 सुन तो रहे हैं। जिन जिन्नात वहाँ पे जब पढ़ते हैं तो वो फरिश्ते पढ़ते हैं, तो ये बता दो कि वहाँ पर जब जो उम्रा करने या हज करने आते हैं, अगर ये सलाम पेश करते हैं तो इनको क्यों नहीं पढ़ना है? वो अलग चीज है, इकट्ठे नहीं पढ़ने देते, अकेले आप घर पढ़े, कोई मना नहीं अब देखो कुरान ये नहीं कह रहा है, इकट्ठे नहीं पढ़ने अब देखो ये कह रहा है इकट्ठे नहीं पढ़ने देते हैं, ये रह के आने। अब कुरान, अभी रुको एक मिनट, कुरान ये नहीं कह रहा है इकट्ठे इकट्ठे पढ़ो, कुरान के उसमें कहीं मफहूम में है ही नहीं कि अलग अलग पढ़ो, बल्कि कुरान के उसमें यह है कि बेशक अल्लाह के फरिश्ते दुरूद भेजते हैं, तो ए ईमान वालो सारे के सारे तुम, यानी हुक्म हर एक की तरफ मुतवज्जे है। कमाल मुस्तफा जरी तुम भी पढ़ो, मौलाना शहादत साहब तुम भी पढ़ो, मौलाना जावेद साहब तुम भी पढ़ो, सब सबके लिए कहा, अब सब पढ़े। अब कभी ऐसा हो वो हुक्म अलग अलग हमारे लिए जोखनपुर अटामांडा सबके लिए अलग अलग मुतवज्जे हो गया, लेकिन ये बताइए, और इन्होंने कहा जब दिल करे तब पढ़ो। अब मैं जोखनपुर से आ गया, ये अटामांडा स्टेशन से आ गए, ये रत्ना से आ गए, और आप सब में से आगे जमा हो गए नहीं हो गए? अब बताइए हुक्म हर एक की तरफ मुतवज्जे अलग अलग है, ये सब पढ़ो, जोखनपुर, बरेली, गिरधरपुर और
डेली वाले सब पढ़ो, अब सब हो गए एक जगह जमा, यहाँ पर 20 लोग। अब बताइए हुक्म अभी भी मुतवज्जे है या नहीं है? हुक्म मुतवज्जे है या नहीं? और हुक्म मुतवज्जे है तो अब आप पढ़ोगे तो कुरान के मुताबिक पढ़ोगे या कुरान के खिलाफ पढ़ोगे? मुताबिक पढ़ोगे। बताओ भाई, आप कुरान के खिलाफ तो नहीं पढ़ रहे, कुरान के मुताबिक पढ़ रहे। तो पता लगा तन्हा दुरूद व सलाम भेजना भी ये भी दुरुस्त है, और इज्तिमाइयत के साथ इकट्ठा होकर भेजना भी दुरुस्त है। और हदीस से साबित है कि 70,000 फरिश्ते सुबह को हाजिर होते हैं, 70,000 शाम को हाजिर होते हैं, और सब हुजूर की बारगाह में दुरूद भेजते हैं। और इतना अफजल है ये काम कि जिसको एक मरतबा एक फरिश्ते को मौका मिल गया, कयामत तक दोबारा उस फरिश्ते को मौका नहीं मिलेगा। इतने फरिश्ते अल्लाह ने क्यों पैदा फरमाए? जो हिकमतें हैं उनमें एक हिकमत ये भी है ताकि कसरत से मेरे हबीब पर ये फरिश्ते दुरूद और सलाम भेज दें। एक एतराज सुने, अब एतराज क्या? मैंने भी आपसे कहा, जैसा शेख ने बताया, मैंने भी कहा कि भाई सब पढ़ सकते हैं, सब पढ़ सकते हैं। एतराज ये है कि जिस आयत का मफहूम हजरत ने बताया कि इस आयत से ये दलील पकड़ी है कि सब पढ़ सकते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को? एक आयत से दलील पकड़ी उन्होंने कि सब पढ़ सकते हैं और जमा होकर पढ़ सकते हैं। ये आयत जो हजरत की समझ में आई, ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की समझ में नहीं आई, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की समझ में नहीं आई, ये उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की समझ में नहीं आई, किसी सहाबी की समझ में नहीं आई। ये इनकी समझ में 1400 साल के बाद आई। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर उनकी समझ में यही मफहूम आया होता जो हजरत ने जो मफहूम बताया है, तो वो सब मिलकर पढ़ते जनाजे के साथ। पढ़ते या नहीं पढ़ते? बताओ, बोलो बोलो। अब खामोश रहने की जरूरत नहीं, सब पढ़ते नहीं पढ़ते। लेकिन अगर अरे जबरदस्ती आप जबरदस्ती अब अगर है, अब कहीं पढ़ा है, अगर कहीं पढ़ा है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, तो वो हमको दिखा दो। अल्लाह की कसम है, चीख चीख कर पढ़ेंगे। मैंने कोई गलत बात कही? चीख कर पढ़ने में कोई गलत बात कही? अरे तो ये चीख के तो पढ़ते जा रहे थे, और कैसे पढ़ रहे थे? ये मैंने कोई गलत बात कही? मैंने कोई गलत बात कही? दिखा दो कहीं हुक्म हो तो। कहीं नहीं है, पूरे सुबह से शाम तक सारी जिंदगी ये दिखा नहीं सकते। अब हम बता रहे हैं, चलो सुनो। अब आप देखो, ये जो हदीस पाक मैंने पढ़ी 70,000 फरिश्तों वाली, ये हुजूर का फरमान है ना? अरे सुनो, हुजूर का फरमान है नहीं, इकट्ठे नहीं है, सबका सबके तुम 1 करोड़ पढ़ो, लेकिन सब अपनी 70,000 इकट्ठे नहीं, 70,000 फरिश्ते जो तुम अपने 70,000 फरिश्ते अबू बकर को समझ में नहीं आता, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अब 1400 साल के बाद तुम्हारी समझ में। अरे भाई तस्लीम भाई, इधर तवज्जो करो, सुने हजरत की बात सुने, मैं एतराज करूंगा तुम्हारे सामने। सुने हजरत की बात सुने, और मैं एतराज ये पूरी हो जाए, चल रही है। 70,000 फरिश्ते, सुनो, अरे एक बात तो 70,000 फरिश्ते सुबह को पढ़ते हैं, 70,000 फरिश्ते शाम को पढ़ते हैं, ठीक है? अरे भाई इधर आप अरे बात इधर हो रही तस्लीम भाई यार, है भी तस्लीम भाई, अरे बात इधर सुनो ना। जाते हैं आप खामोश रहो, पहले एक बात सुनो। बात घुमाओ मत। 70,000 फरिश्ते सुबह को पढ़ते हैं, 70,000 शाम को पढ़ते हैं। ये क्या है? हदीस। ये क्या है? हदीस। बिल्कुल है, बिल्कुल सही है। हुजूर का फरमान है। कब फरमाया हुजूर ने? 14 साल बाद, 1400 साल बाद। मुझे कह रहे हैं कि आज बता रहे हैं। आज हुजूर ने आज बताया, 14.5 साल पहले बताया है। कब बताया? मुझे बताया, मैं भी तो बता रहा हूँ, मुझे बोलने दो, सबने पढ़ा, मुझे ठीक है ना? ये 70,000 फरिश्ते हुजूर की जालियों पर, हुजूर के रोजे पर हाजिर होकर पढ़ते हैं। बिल्कुल पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये जमा हुए 70,000 के लिए इज्तिमाइयत चाहिए नहीं चाहिए? ये सब बात ज़हन में आने वाली है। अब ये बताइए, ये बात मैं आज अपनी तरफ से कह रहा हूँ या हुजूर की हदीस कोट कर रहा हूँ? बताइए। हदीस कोट करी, लेकिन एक साथ अब सुनो, आवाज में पढ़ने की कहीं दलील नहीं है। एक मैंने भी पहले कह दिया कि सब पढ़ सकते हैं।